Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject animation. And today is the 16th lecture of this subject, and we are studying principles of animation. And it is the seventh part of this lecture. It is also a practical lecture. Before that, we have discussed many other principles, and in today's lecture, we are going to further explore some other principles that are derived from the book of animation from Disney, and those topics that are derived from those books are known as fundamental principles of animation. So, by studying or by understanding the fundamentals, principles of animation, we would be able to animate any kind of character or object in a proper way. So, today is the principle that we are going to study is called exaggeration, and the exaggeration means that we are going to present the actions of the character or objects in some extreme in you can say that in some extreme way, if a person is laughing in reality, uh, then in cartoons we will show the laughing pose of that character in a very extreme way. तो इसका पर्पस ये होता है कि एग्जैजुरेशन करने से आपके करेक्टर में या आपके ऑब्जेक्ट्स में they give a more attractive look to the audience, and to engage the audience it is very important to gain their attention uh, by some wild actions or by some exaggerated actions or by some extreme actions. So if we use the normal poses or normal actions from the real life uh, and show them as it is in our animations, then our cartoons or animations will look static or dead or less attractive because the audience is here to uh, feel some more entertainment or feel some more life और feel some more attraction in animation. तो अगर उनको एनिमेशन में भी उसी तरह की फील आए और उसी तरह की आप जो हैं वो मोमेंट्स और मोशंस दिखाएं जो कि उनको रियल रियल लाइफ में नजर आती हैं, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे उसकी उस चीज की तरफ. तो ये तो था एग्जेजरेशन का थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप या उसका कि एग्जेजरेशन होती क्या है. तो फर्दर हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं. Exaggeration is an effect especially useful for animation, as perfect imitation of reality can look static and dull in cartoons. Like we said before that if we use real actions or movements from the real life in animation, then our animation will look dead. So परफेक्ट इमिटेशन जो रियल लाइफ की है वो एनिमेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको एग्जेजरेटेड या एक्सट्रीम करके दिखाना होता है. The level of exaggeration depends on whether one seeks realism or a particular style, like a caricature or the style of an artist. कि जो एग्जेजरेशन का लेवल है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपकी किस टाइप की आप मोशन दिखाना चाहते हैं, या आपका जो आर्टिस्ट है उसका स्टाइल क्या है ड्रा करने का उस एग्जेजरेशन को. The classical definition of exaggeration employed by Disney was to remain true to reality, just presenting it in a wilder or more extreme forms. Means के डिज्नी के मुताबिक the exact or the perfect definition of exaggeration is uh, to maintain the reality but show it in a wilder or more extreme way.
मीन्स कि आपने रियलिटी को जो है वो हाथ से नहीं जाने देना। जो भी रियल लाइफ में मोशन है, एक बंदा जैसे जंप कर रहा है रियल लाइफ में, तो वो जंप आपने उसी तरह से इसमें एनिमेशन में दिखाना है उन्हीं फीचर्स के साथ, लेकिन उसको जरा वाइल्ड और एक्सट्रीम कर देना है कि जंप में ज्यादा एनर्जी आ जाए, जंप में जो है वो ज्यादा फोर्स फील हो, और इस तरह की चीज हो, इसको हम एग्जैजरेशन कहते हैं। Other forms of exaggeration can involve the supernatural or serial alteration in physical features of the character। मीन्स के exaggeration जो है वो उसकी कुछ फॉर्म है कि जिसमें करेक्टर आपका इस तरह की कोई हरकत करे कि जो कि आम लाइफ में या आम रियलिटी में नहीं हो सकती है, उसको हम सुपर नेचुरल कहते हैं। कि जिस तरह एक बंदा जो है वो करेक्टर है, वो कार्टून्स में बॉल को हिट कर रहा है, तो बॉल को हिट करते वक्त वो पूरा का पूरा हवा में उड़ जाता है और पूरी फोर्स के साथ बैट को आगे को घुमा देता है। तो इससे उस इससे आपने उसके अंदर एक सुपर नेचुरल किस्म की जो है वो मूवमेंट डाल दिया कि जो आम लाइफ में हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि आपने ये दिखाया है कि इसने पूरी फोर्स के साथ हिट लगाई है। और serial मीन्स कि उसके अंदर आपने अल्ट्रेशन इतनी ज्यादा कर दी है कि वो अपने रियल फॉर्म में लग ही नहीं रहा। It is important to employ a certain level of restraint when using exaggeration. If a scene contains several elements, there should be a balance in how those elements are exaggerated in relation to each other to avoid confusion or overwhelming the viewer। मीन्स के कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं या कुछ लेवल्स हैं एग्जैजरेशन के हवाले से कि जब आपने मल्टीपल पोजेस को दिखाना है तो उसमें से आपने ये चेक करना होता है कि कौन से पोज को आप एग्जैजरेट करके दिखाएंगे और कितना एग्जैजरेट करके दिखाएंगे, ताकि एक पोज दूसरे पोज के साथ रिलेट करे। ऐसा ना हो कि एक करेक्टर को अपने हँसता हुआ तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन के साथ दिखा दिया है, लेकिन रोते हुए आप उसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल करके दिखा रहे हैं। तो ये एक अच्छी एनिमेशन की जो है वो मिसाल नहीं होगी कि उसके अंदर आपने एक पोज़ में तो आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन दिखा रहे हैं और दूसरों में नहीं। और एक पोज़ से दूसरे पोज़ में जब एक कैरेक्टर चेंज हो रहा है कि एक कैरेक्टर को जंप करते हुए तो आपने बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन में दिखा दिया, लेकिन वॉक करते हुए वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रियलिटी वाली वॉक कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं होगा। तो आपने हर पोज के दरमियान जितने भी पोजेज आपने उसके अंदर होंगे उन सब के अंदर बैलेंस रखना है और एग्जैजरेशन का लेवल जो है वो इसी तरह से रखना है कि उनके अंदर चेंजिंग्स के अंदर एक आपको हारमोनियस फील नजर आए। अब जिस तरह ये है कैरेक्टर एक्सप्रेशन एग्जैजरेशन, इसी की मिसाल लें कि इसमें ये कैरेक्टर जो है वो तो दोनों कैरेक्टर्स को आपने बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी दिखाना है, तो उसमें से एक कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होके हैप्पी उसका फेस नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे को आप रियलिटी टाइप दिखा दें तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। आपने बैलेंस रखना होता है, तो बैलेंस रखने के लिए इसमें इसको भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड स्माइल के साथ दिखाया है और इसको भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड स्माइल के साथ दिखाया है। और जिस तरह अब ये नॉर्मल पोज है, आम आम पोजेस में तो आप पत्थर उठा के इसी तरह फेंकते हैं। आप कभी जो है वो किसी को भी देख लें तो कोई चीज उठा के आपने फेंकी तो इस तरह से आप कर रहे हैं, ये नॉर्मल पोज है। लेकिन इसको ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए और कार्टून्स के हवाले से और ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आपने इसको एग्जैजरेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब एक्चुअल लाइफ में क्या होता है कि बॉल जो है ऊपर से आई नीचे की तरफ गिर गई, बस ये तो सिंपल होता है कि वो इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होगी। लेकिन कार्टून्स में जो है वो बॉल को भी आप एज अ करेक्टर दिखा रहे हैं और उसके अंदर भी एक लाइफ दिखा रहे हैं कि वो इस तरह से ऊपर, हालांकि कोई भी बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जब जंप करेगी तो स्ट्रेच इन स्ट्रेच आउट नहीं हो सकती, लेकिन कार्टून्स में आपने इसको दिखाना होता है। रियलिटी में बॉल के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं आता, आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है जो कि नजर ही नहीं आता, लेकिन कार्टून्स में आपने उसको इस तरह से दिखाया। फिर ये जिस तरह एक बंदा रियल लाइफ में बॉक्सिंग कर रहा है तो ये इस तरह से उसने बहुत ज्यादा जोर किया जो है वो पंच लगाया है, तो लेकिन कार्टून्स में आपने जो बहुत ज्यादा हैवी पंच दिखाना है तो वो इस तरह का दिखाएंगे कि उसके उसके प्रेशर से या उसकी फोर्स से पूरा करेक्टर भी हवा में उड़ गया।
और इस तरह से नजर आ रहा है। तो ये एक सुपर नेचुरल किस्म का पोज लग रहा है, या एक उसके अंदर सरियल जो है वो चेंज आ चुका हुआ है, ऑल्ट्रेशन आ चुकी हुई है, तो जो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह गोल्फ बॉल को हिट करते हुए आमतौर पे तो इसी तरह का पोज होता है, जबकि कार्टून्स में आपने इस तरह का पोज देखा है कि वो कैरेक्टर के तमाम अल्ट्रेशन उसके अंदर आ गई हुई है और वो बहुत ज्यादा हवा में जंप कर गया, तो ये इतनी ज्यादा एग्जेजरेशन आपने दिखाई है। तो ये चीज है जो आपने कार्टून्स पे फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो अब ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल इस लेक्चर के हवाले से ये है कि आपने कोई से दो जो हैं वो पॉजेस ड्रॉ करने हैं। एक पॉज में आपने दिखाना है कि आपका करेक्टर जो है वो रियलिटी में अगर आप इस तरह की मोशन करेंगे या इस तरह का एक्शन करेंगे तो किस तरह का होगा, और अगर आप उसको कार्टून्स में दिखाएंगे उसी करेक्टर को, फिर आपने उस एक्शन के साथ एग्जेजरेटेड फॉर्म में दिखाना है। लेट्स सपोज के एक करेक्टर जो है उसको आपने कोई बॉल फेंकते हुए दिखाना है। तो आम लाइफ में आप अपने आप को उस कैरेक्टर की जगह रखें और बॉल को जमीन से उठा के फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो आपका पोज क्या होगा। तो ये आपने नॉर्मल और रियल लाइफ के मुताबिक दिखाना है। फिर उसी कैरेक्टर को आपने बॉल फेंकते हुए दिखाना है कि अगर वो कार्टून्स में यूज हो रहा हो तो किस तरह से बॉल फेंकेगा, तो उसके आपने एग्जेजरेटेड फॉर्म ड्रॉ करनी है उसकी। और इसी तरह दूसरी कोई एग्जांपल भी इसी तरह का आपने बनाना है। तो दो दो आपने एक्शंस को दो दो डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाना है, एक नॉर्मल फॉर्म में और एक एग्जेजरेटेड फॉर्म में। तो बहुत आसान काम है, इसकी आप ड्राइंग तैयार कीजिए। ये आपका इस लेक्चर के हवाले से आपकी असाइनमेंट है और प्रैक्टिकल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।